हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं सी जोशी, TGT-SST केंद्रीय विद्यालय ITBP सेकंड शिफ्ट देहरादून। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। India is a vast country with varied landforms. Our country has practically all major physical features of the earth, that is mountains, plains, deserts, plateaus and islands. India has a large landmass formed during different geological periods which has influenced her relief. Besides geological formations, a number of processes such as weathering, erosion and deposition have created and modified the relief its present form. भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भी परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। The land of India displays great physical variation. Geologically, the peninsular plateau constitutes one of the ancient land masses on the Earth's surface. It was supposed to be one of the most stable land blocks. भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का सबसे पुराना भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। The Himalayas and the northern plains are the most recent landforms. From the viewpoint of geology, Himalayan mountains form an unstable zone. हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अनस्टेबल जोन है। The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां हैं। The northern plains are formed of alluvial deposits. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. Northern plains, उत्तरी मैदान, alluvial deposit से बना है और peninsular plateau igneous और metamorphic rock से बना है। Major physiographic divisions. The physical features of India can be grouped under the following physiographic divisions. भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। The Himalayan mountains, हिमालय पर्वत श्रृंखला। The northern plains, उत्तरी मैदान। The peninsular plateau, प्रायद्वीपीय पठार। The Indian desert, भारतीय मरुस्थल। The coastal plains, तटीय मैदान। और the islands, द्वीप समूह। The Himalayan mountains. Formation of Himalaya. The Himalayas were formed as a result of the collision between the Indian plate and Eurasian plate. Because of the impact of convectional currents, the crust was split into many pieces. The Indo-Australian plate got separated from the Gondwana and drifted towards the north. As it drifted towards the north, it collides with the Eurasian plate. As a result of this collision, the sedimentary rocks which were settled in the large-scale depression in the Earth's crust called tethys were folded and formed the Himalayas. The Himalayas are the youngest mountains in the world and are structurally the folded mountains. भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से वलित श्रृंखला है। The Himalayas run along the northern border of India. The Himalayas form an arc which is about 2,400 km long. The width varies from 400 km in Kashmir to 150 km in Arunachal Pradesh. ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल में 150 किलोमीटर है।
The altitudinal variations are greater in the eastern part than in the western part. There are 3 parallel ranges in its longitudinal extent. Number 1, the Great or Inner Himalayas. This is the northernmost range and is also known as Himadri. This is the most continuous range. It contains the loftiest peaks. सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। The average height of peaks in this range is 6,000 meters. All the prominent Himalayan peaks are in this range. The folds of the Great Himalayas are symmetrical in nature, and the core of this part is composed of granite. Because of the lofty heights, the peaks of this range are perennially snowbound. ग्रेट और इनर हिमालयाज में 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। नंबर 2, द लेसर हिमालय और हिमाचल। दिस लाइज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज। द एल्टीट्यूड ऑफ पीक्स इन दिस रेंज वेरीज फ्रॉम 3700 मीटर टू 4500 मीटर। Average width of this range is 50 किलोमीटर। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है और हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से इसे जानते हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक्स की वजह से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है और औसत चौड़ाई 60 किलोमीटर है। लेसर हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी सबसे लंबी है। धौलाधर और महाभारत रेंज भी इम्पोर्टेंट हैं। इसी रेंज में कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। लेसर हिमालय हिल स्टेशंस के लिए भी फेमस है। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, शिमला आदि हिल स्टेशंस लेसर हिमालय में आते हैं। The Shivaliks. This is the outermost range of the Himalayas. The altitude varies between 900 and 1100 meter in this range, and the width varies between 10 to 15 kilometer. हिमाचल की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में है और इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है। These ranges are composed of unconsolidated sediments. The longitudinal valleys lying between the Himachal and Shivaliks are called Doon. ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बनी हैं। निम्न हिमाचल और शिवालिक, बिटवीन द लेसर हिमालय एंड शिवालिक, इसके बीच के स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून देहरादून, कोटली दून और पाटली दून है। भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं द ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और हिमाचल और शिवालिक। सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयाज। हिमालय की कुछ सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियां। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है और इसकी हाइट 8848 मीटर्स है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को माना जाता है, जो कि सिक्किम में स्थित है और इसकी हाइट 8598 मीटर्स है। इसके अलावा कुछ और पीक्स आप देख सकते हैं। हिमालयन रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से पूरब तक हिमालयी क्षेत्र। पंजाब हिमालयाज। दिस पार्ट लाइज बिटवीन द इंडस एंड सतलुज
from west to east. This is also known as Kashmir Himalaya and Himachal Himalaya. उत्तर से दक्षिण की ओर हमने हिमालय के भागों को पढ़ा था, द ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक. इसी तरीके से वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर भी हिमालय को विभाजित किया जाता है. और यह जो वर्गीकरण किया गया है यह नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है. जैसे पंजाब हिमालय, सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय का यह भाग पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है. इसे पश्चिम से पूर्व तक कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं. इसी तरीके से कुमाऊं हिमालय, दिस पार्ट लाइज बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स. Nepal Himalayas, this part lies between the Kali and Teesta rivers, and Assam Himalayas, this part lies between the Teesta and Dihang rivers. यह भारत का मानचित्र है जिसमें आप हिमालय की पर्वत श्रेणियों को देख सकते हैं. Eastern hills and mountains. The Brahmaputra marks the eastern border of the Himalayas. Beyond the Dihang Gauze, the Himalayas bend sharply towards south and form the eastern hills और पूर्वांचल. ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है. दिहांग गौर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है. इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ कहा जाता है. ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं. These hills run through the north eastern states of India. भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर. They are mostly composed of sandstones. These hills are composed of the Patkai Hills, Naga Hills, Manipuri Hills and Mizo Hills. ये पर्वत श्रृंखलाएं मजबूत बलुआ पत्थरों से बनी हैं और घने जंगलों से ढकी हैं और अधिकतर समानांतर श्रृंखलाएं और घाटियों के रूप में फैली हैं. पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं. सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है. अब एक क्विज खेलते हैं और ये देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा. क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द नॉर्दर्नमोस्ट रेंज ऑफ द ग्रेट हिमालयाज? एंड ऑप्शंस आर हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, पूर्वांचल. यस, द करेक्ट आंसर इज हिमाद्री. क्वेश्चन नंबर 2, माउंट एवरेस्ट, द हाइएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, लाइज इन बांग्लादेश, पाकिस्तान, India, Nepal. And the correct answer is Nepal. Now question number 3, which mountain range of Himalayas is known for hill stations? Himadri, Himachal, Shivalik, Purvanchal. The correct answer is Himachal. Question number 4, which is the outermost range of Himalayas? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, धौलागिरी. And the correct answer is Shivalik. Now question number 5, which is the highest peak of India? Mount Everest, Kanchenjunga, Mekalu, Dhaulagiri. Yes, the correct answer is Kanchenjunga. So students, ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है. थैंक यू.